Constitution in India came into force. I am proud to be an Indian. Bharat Mata ki jai. Thank you. To all respected teachers and my friends, I am Meghnareda, studying in Junior KG. Now I am going to speak about Republic Day. Republic Day is our national festival of India. We celebrate Republic Day on 26th January. On 26th January in 1950, the Constitution of India was made. We must respect the Constitution of India. Jai Hind, Jai Bharat. Bharat Mata ki jai ho. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदली रंग, यहाँ की बोली रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदली रंग, यहाँ की बोली रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने ऊपर है। नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा Good morning, my dear principal, my dear teachers, my dear friends. My name is Anisa Bukharani. I study in the KVP. I am going to speak about Republic Day. Republic Day is the national festival of India. We celebrate on 26th January every year. Republic means nothing local. People vote and elect their rule. On this day, we host the national flag and sing national anthem song. Jai Bharat Mata ki jai. Bharat Mata ki jai. Vande Mataram, Vande Mataram. माई मुख्याध्यापिका शिक्षिका आणि माझ्या बालमित्रांनो सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. मी शिवसंदीप कोणते, सिनियर केजीबी. मी तुम्हाला प्रजासत्ताक दिनाचे 4 शब्द सांगणार आहे. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत देश स्वतंत्र झाला. महात्मा गांधी, महात्मा फुले, जवाहरलाल नेहरू, टिळक, शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या देशासाठी प्राण दिले. तरी सुद्धा लोकांना हक्क व अधिकार मिळाले. म्हणून 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना अंमलात आली आणि हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो. ओले भाऊ, मी माझे 4 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय महाराज. लाल जैनी को चार मनवानी, माधुर्यलाल स्कूल में पढ़निया. ई मुहिंजो वतन, मुहिंजो वतन, मुहिंजो वतन आ। ई मुहिंजो वतन, मुहिंजो वतन, मुहिंजो वतन आ। मिसरी अखा में तेरो, माँ की अखा में तेरो, संसार जे सभिनीनि देशनि खां सुठेरो। मिसरी अखा में तेरो, माँ की अखा में तेरो,
मुहिंजो वतन आ। मिठरे वतन खां रखी की बनवारिया, जेकी हुजे मुंडे वरी की न पचारिया। दिल में हमेशा शाल रहे देश जी लगन, ई मुहिंजो वतन मुहिंजो वतन मुहिंजो वतन आ। ई मुहिंजो वतन मुहिंजो वतन मुहिंजो वतन आ। जय हिंद। Good morning to everyone. My name is Yash Bajaj from Senior KG A CBSE. A very happy Republic Day to all. On this occasion of Republic Day, this speech is dedicated to all Indians. So let's start. The entire nation will celebrate its 72nd Republic Day on this 26 January 1950. The 2021, as it is the day when India declared its independence, Purna Swaraj, from the British in 1930. On 26 January 1950, the Constitution of India came into force. So we celebrate this day as Republic Day every year. In New Delhi, a huge parade is conducted by Army, Navy and Air Force on this day. Republic Day is a festival of joy. The entire country is decorated with tricolors to convey that India is a country where unity and diversity celebrated. It is a national holiday for all school, colleges and offices. President of India addresses the nation on this day. Thank you. Now let's take a pledge. India is my country and all Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers and elders and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in their well-being and prosperity. Alone lies my happiness. Thank you. Jai Hind. दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान।
जैसी भी है अपनी नहीं कहानी, थोड़ी हमने होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हमने सच्चाई है, थोड़ी है फिर भी दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बात बात में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ की टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कुर्बानी
अब तो हमें आगे बढ़ते हैं, अब तो हमें साथी है बस एक नारी कहना। Good morning, principal, teachers, and all my lovely friends. My name is Daksha Uja. I am studying in First X CBSE Board, Julelal Trust School and Junior College. I am very excited and glad to say something about our country. At first, I would like to wish you all a happy Republic Day. Republic Day is celebrated on 26th January every year all over the country. Republic Day is the national festival of India and a national holiday. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. Baba Saheb Ambedkar is the father of the Constitution of India. We all must respect the Constitution of India. We must respect our freedom and freedom fighters. We must learn and sing the national anthem Jana Gana Mana in schools. On this day, let us pledge to be a responsible citizen of India. Jai Hind, Jai Bharat. रिपब्लिक डे शान से मनाएंगे हम. भारत माता की जय. वंदे मातरम. Hello everyone, I am Simran Lowry from 4th A. Today I am going to speak few lines on Republic Day. Republic Day is celebrated on 26th January every year. Republic Day is a national festival of our country. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. The Constitution is the supreme law of India. So we all should respect the Constitution of India. Schools and colleges also celebrate Republic Day by unfurling the national flag and singing national anthem Jana Gana Mana. So all of you, wishing you a very happy Republic Day. Thank you. I would like to wish a happy morning to our honorable principal, my beloved teachers, my supportive seniors and my lovely classmates. I also wish to tell you a few facts about this special occasion. Here are we to celebrate the 72nd Republic Day of our nation. Though our country got its independence on 15th August 1946, it took some time, 2.5 years to be precise, for our constitution to come into effect. Our constitution
came into full power from 26 January 1950. From then we started celebrating 26 January as Republic Day, which is a national day. On this auspicious day, let us all know those legends who sacrificed their lives for our well-being. Thanks for giving me this great opportunity to stand in front of you all and express my views. Jai Hind! जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का। इस देश को यारो, इस देश को यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ तक अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। नमस्कार, माझे नाव हर्षदा महेंद्र कदम, इयत्ता 7वी ब. माझ्या शाळेचे नाव झिलेला टर्स्कुलिन ज्युनियर कॉलेज. आज आपला 72वा प्रजासत्ताक दिन आहे. प्रजासत्ताक म्हणजे प्रजेची सत्ता असणारे राष्ट्र. विविध भाषा, प्रांत, बोली व संस्कृतींनी आपले देश परिपूर्ण आहे. आपल्या देशाने एकमतता दृढ केली आहे व सोबत
खूप सारी प्रगती सुद्धा केली आहे. लोकशाही अंगीकारली आहे. अवकाशापर्यंत उंच झेप घेतली आहे. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणारे स्वातंत्र्यवीर व सोबतच नेत्यांना सुद्धा आपण एक अभिवादन देऊया, कारण ते खूपच कष्ट घेऊन हे स्वातंत्र्यापर्यंत पोहोचले आहे. तर चला आपण सगळे त्यांना व आपल्या राष्ट्रध्वजाला एक वंदन देऊया. माझे नम्र अभिवादन. जय हिंद, जय भारत. आज सलाम है उन वीरों को जिनके कारण ये दिन आता है. वो माँ भी खुश नसीब होती है, बलिदान जिसके बच्चों का देश के काम आता है. 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू किया गया था. तब से हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. भारत में हर सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में बड़े ही उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है. गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन. 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत को गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था. सभी भारतीय नागरिक Good morning. Myself Bhumika Kukreja. On the eve of this 72nd Republic Day, I extend warm greetings to all my viewers. One nation, one vision, one identity. No nation is perfect. It needs to be made perfect. Meri Pehchan, Mera India. A very happy Republic Day to all of you. Let's take a quick look at our today's headlines. Celebration of Republic Day in our nation. Celebration of Republic Day in Jhulelal Trust School and Junior College. As it is 26th January, the country is celebrating its 72nd Republic Day with a lot of joy and enthusiasm. We can see the magnificent parade and national flag hoisting by PM Modi ji. Every year, Jhulelal Trust School and Junior College celebrates Republic Day with a lot of joy and enthusiasm. But this year, because of this ongoing pandemic, the situations are quite unfavorable for gatherings. But JTSC has adopted creative and innovative platforms for celebrating Republic Day with their students. For JTSC, the show must always go on. Let's connect with Chahat and ask her what she wants to tell about JTSC. Hello Chahat, can you please tell us in what exciting way the students are celebrating Republic Day this year? सभी को चाहत की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. यहाँ से मैं देख सकती हूँ झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जहाँ हर साल गणतंत्र दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम होते हैं और आज का अवसर तो है कुछ खास. माननीय डायरेक्टर संध्या मैडम से बात करने से पता चला है इस बार कोरोना के वजह से झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल के बच्चे अपनी देशभक्ति की भावना बयान करने के लिए सामूहिक समारोह ना करके आभासी तौर पर गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं. चलिए तो आप और मैं मिलकर बच्चों के द्वारा गाए गए गीत, मधुर संगीत और अन्य प्रोग्रामों का आनंद. Management members, principals, teachers and all my dear friends. Myself Gurbani Devesh, student of Jhulelal Trust School and Junior College. Today I am here to tell you something very special. Though our school is English medium school, but today on this auspicious occasion of Republic Day, that is 26th January, we are celebrating our 72nd Republic Day. And my fellow friends are going to present a speech in Hindi language in front of you all on a very interesting topic, that is India of 1950s and India of 2021, प्राचीन काल का भारत और आज का भारत. आज के मुख्य आधारों पर हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि 1950 के भारत और 2020 के नए इंडिया के बीच क्या अंतर है. तो शुरू करते हैं आर्थिक स्थिति से. 1950 में हमारे देश की जीडीपी थी 10,000 करोड़ रुपए, जो आज बढ़कर 190 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है. 70 वर्ष पहले हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय 250 रुपए सालाना हुआ करती थी, जो कि आज बढ़कर 1,35,000 सालाना तक हो चुकी है. 1950 में 1 किलो आटे की कीमत 10 पैसे हुआ करती थी, जो आज बढ़कर 30 से 60 रुपए तक हो चुकी है. 15 अगस्त 1947 में एक भारतीय रुपया $1 के बराबर था, जबकि आज इस $1 की कीमत भारतीय 69 रुपयों तक पहुंच चुकी है. 1947 में 88.62 रुपयों में 10 ग्राम सोना खरीदा जा सकता था, जबकि आज इतना सोना खरीदने के लिए हमें 50,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं.
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1950 के दौर में 10 पैसे प्रति किलो आटे को भी बहुत महंगा माना जाता था, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों को इस तरह लूटा था कि भारत के लोगों के पास पैसे ही नहीं हुआ करते थे। इसी तरह 1 किलो चावल की कीमत भी 10 से 20 पैसा हुआ करती थी, जबकि आज 1 किलो चावल खरीदने के लिए 40 से 100 रुपये तक लग जाते हैं। अब यातायात पर आते हैं। उस दौर में लोग शहरी यातायात के लिए टांगा और बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। दिल्ली जैसे शहर में मात्र 10 पैसे में कई किलोमीटर तक की यात्रा की जा सकती थी, लेकिन आज मेट्रो का युग है, जिसका किराया 10 रुपए से लेकर 70 रुपए तक हो चुका है। 70 साल पहले देश के बड़े लोगों और राजनेताओं के पास ही गाड़ियां हुआ करती थी। उस दौर में ब्रिटेन में बनी हुई सनबीम, टेलबोट और जैगुआर कंपनी की कारें भारत में बहुत चर्चित थी, लेकिन जैगुआर एक भारतीय कंपनी बन चुकी है। वर्ष 2008 में भारत की उद्योगपति रतन टाटा ने जैगुआर कंपनी को खरीद लिया। भारत की पहली एयरलाइन भी टाटा समूह के चेयरमैन JRD टाटा ने शुरू की थी। भारत में इसे एयर इंडिया के रूप में भारत सरकार ने खरीद लिया। आज देश में 6 एयरलाइन कंपनियां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंग्रेजों के समय में रेलवे नेटवर्क की शुरुआत हुई और इसको कई ऊंचाई पर पहुंचाया गया, लेकिन आजादी के बाद भारत में रेलवे को एक और नया रूप मिला, जैसे कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की शुरुआत, फास्ट फ्रेट सर्विसेज, केंद्रीय यातायात नियंत्रण प्रणाली। रेलवे ने तेजी से आधुनिकीकरण की दिशा में कदम उठाया। कंप्यूटरीकृत टिकट, पहली स्वयं प्रिंटिंग टिकट मशीन, मेट्रो की शुरुआत हुई, ऑनलाइन ट्रेन आरक्षण और टिकट लेने का शुभारंभ हुआ। रेलवे नेटवर्क में वृद्धि हुई। आज 13 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी भारतीय रेलवे में काम कर रहे हैं। आज हमारे देश में बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम हो रहा है और वर्ष 2022 तक यह पूरी कर ली जाए। मनोरंजन और संचार माध्यम की बात करें तो उस दौर में भारत में करीब 84,000 लैंडलाइन कनेक्शन हुआ करते थे। इनमें से ज्यादातर कनेक्शन सरकारी दफ्तरों में लगे हुए थे। आज मोबाइल फोन्स का जमाना है। देश में इस समय करीब 120 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शंस हैं। 1950 में भारत में करीब 200 अखबार प्रकाशित होते थे। आज ये संख्या 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। 1950 के दौर में मनोरंजन के साधन बहुत कम हुआ करते थे। अधिकतर लोगों के लिए रेडियो ही मनोरंजन का साधन था। फिल्में देखना एक महंगा शौक माना जाता था। उस समय सिनेमा हॉल की टिकट करीब 25 पैसे हुआ करती थी। 1947 में रिलीज हुई फिल्में जुगनू और दर्द उस दौर की सुपरहिट फिल्में थी। आज के दौर में फिल्में देखना एक सामान्य बात हो गई है और लोग अपनी मनपसंद फिल्में अपने स्मार्टफोन पर ही देख लेते हैं। संचार क्रांति के इस युग में इंटरनेट का जादू सब पर, विशेषकर युवा वर्ग पर छाया हुआ है। इंटरनेट के इस जमाने में टीवी का महत्व भी कम होता जा रहा है। अब तो आप अपने मोबाइल, लैपटॉप पर एक विशेष तरह की केबल कनेक्ट कर अपने टीवी पर इंटरनेट के जरिए मनोरंजन कर सकते हैं, फिल्में, सीरियल या सीरीज देख। आइए अब खेती में आए बदलावों को देखते हैं। आज़ादी के समय कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमें बाहर से अनाज मंगवाना पड़ता था, लेकिन 1966 के बाद देश में हरित क्रांति आई और आज गेहूं और चावल के उत्पादन में हमारा देश विश्व के दूसरे स्थान पर है। हल और बैल से खेती करने वाले किसान अब आधुनिक साधनों का प्रयोग करके खेती का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। हालांकि 1950 के दशक में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान करीब 50% था, जो 2020 में घटकर 14% रह गया है। यदि हम जंगलों की बात करते हैं तो 1950 के समय भारत की भूमि का लगभग 49% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। अब भारत के कुल जंगल इलाकों की 62% भूमि खेती के लिए इस्तेमाल कर दी गई है। जनसंख्या का बढ़ना भी हमारे लिए इन 72 वर्षों में बड़ी चुनौती रहा है, क्योंकि अधिक जनसंख्या के कारण हमारे संसाधन कम पड़ जाते हैं। आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ थी, लेकिन आज भारत की आबादी 135। शिक्षा की बात करें तो वर्ष 1950 में देश में जहां 20 विश्वविद्यालय ही थे, वहां 2020 में यह संख्या बढ़कर
850 विश्वविद्यालय हो गए हैं। कॉलेजों की संख्या 1950 में 500 ही थी, जो इतने वर्ष में बढ़कर लगभग 40,000 से अधिक हो गई है। 1951 में पूरे देश में 13,000 प्राथमिक और 7,000 उच्च माध्यम विद्यालय थे और आज हमारे देश में 15 लाख से अधिक विद्यालय हैं। साक्षरता दर 12% थी और आज 74% से अधिक है। एक वह समय था जब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते थे और एक यह समय है कि कोरोना जैसे महामारी में भी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। 1950 के भारत में जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव अधिक थे और एक यह समय है 2020 के भारत में शिक्षा के प्रसार, जन जागृति के कारण यह सारे भेदभाव कम हो गए। अंत में मैं ये आपसे अवश्य कहना चाहूंगा, 70 वर्ष पहले भारत के लोग गरीब जरूर थे, लेकिन उनमें ईमानदारी, आदर्श और नैतिकता की मात्रा आज की तुलना में कहीं ज्यादा थी। हमें आज भी अपने पूर्वजों से सीखने की जरूरत है। इतना सब कुछ बदल जाने के बाद भी दुनिया भर में भारत की पहचान एक गरीब देश की रही है। कभी आपने अपने आप से ये सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों, जबकि 70 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 1828 गुना बढ़ चुका है। भारत में प्रति व्यक्ति आय भी 293 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी हम निम्न आय वाले देशों में गिने जाते हैं। आज हमने इस 72 साल के सफर को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और अन्य मुद्दों के आधार पर समझने की कोशिश की है। हालांकि यह बहुत लंबा सफर है और यहाँ सारे बदलावों को बता पाना संभव नहीं है। फिर भी किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य कुछ निर्णायक कदमों के आधार पर तय होता है। यह ऐसे फैसले होते हैं, ऐसी उपलब्धियां होती हैं जिनसे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हमेशा के लिए बदल जाता है। So friends, from this speech we can conclude that though our India has come a long way with new inventions and had achieved many goals, but still today our country is known as a developing country and not a developed country. So to make our nation a proud and developed nation in all the ways, we all Indians have to join hands together and work for the progress of our beloved nation. And today we promise that we can and we will make our country a proud and developed nation at the earliest. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai.